Hello everyone. So in this video we will learn how to draw our line chart, bar chart and histogram. तो ये तीन चार्ट्स हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग ये चार्ट्स क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि विजुअल जो डाटा होता है उसको हम मतलब हमें विजुअल डाटा देखते ही हमें पता चल जाता है कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है. तो वो हमें आसानी से विजुअलाइजेशन से हम उसको ज़्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं. तो जो भी ग्राफ या चार्ट्स हमें बनाने होंगे तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है. उस लाइब्रेरी का नाम है मैट प्लॉट लिब. तो ये एक लाइब्रेरी है और अगर आपको जब आप ये लिखते हो import matplotlib डॉट, इसके बाद आपको लिखना है pyplot as on, then you can give any alias name. So normally we use plt for that. आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है plt दो, आप pl दे सकते हो, pt दे सकते हो, py दे सकते हो, pyplot भी दे सकते हो. It is up to you, whatever alias name that you want to give it to you, give it to this library. तो जहां पे भी हम इसके functions यूज करेंगे तो we'll be using plt. So if I press enter, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा then it will not give you any error. बट अगर वो एरर देता है then the command you can actually open command prompt. तो आप एक command prompt ओपन कर सकते हो. Just open the command prompt as an administrator. Just right click over the command prompt and click on run as administrator. Click on the yes. अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी. You have to write pip install and then just write matplotlib. So हम लोगों ने आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने अपने numpy इंस्टॉल किया था, pandas इंस्टॉल किया था. नाउ वी आर इंस्टॉलिंग matplotlib. बहुत इजी है इंस्टॉल करना. अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है तो पिप ऑटोमेटिकली इसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है. यू जस्ट हैव टू गिव पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas, पिप इंस्टॉल matplotlib. And if you press enter, so it will go and check whether that library exists in your laptop or the desktop. अगर नहीं exist कर रही होगी तो it will install that. Otherwise it will say कि all requirement already satisfied, it is already there. So I don't need to install it. Fine. So I'll just close this window. Now here this ये मेरा matplotlib.pyplot library मैंने import कर लिया है. Now I am ready to draw the graphs. So first of all we'll draw a line chart. तो कोई भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो इसके अंदर बहुत सिंपल है यूजिंग दिस pyplot library, matplotlib.pyplot. So first of all if you have to draw any line chart तो उसके लिए आपके पास x एक्सिस की वैल्यूज होनी चाहिए और y एक्सिस की वैल्यूज होनी चाहिए. मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये वीक के जितने 7 डेज होते हैं तो उन 7 डेज का जो टेम्परेचर है दिल्ली का मैं वो उसमें रिकॉर्ड करता हूं और उसके थ्रू मैं शो करना चाहता हूं कि टेम्परेचर कैसे अप डाउन आ रहा है, किस तरीके से है. तो उसके बेसिस पे मैं लाइन चार्ट बनाता हूं. तो मैंने पहले एक वेरिएबल ले लिया डेज इक्वल टू, आई विल क्रिएट अ लिस्ट हियर. सो आई विल गिव इट अ नेम ऑफ, से लेट्स टेक संडे द फर्स्ट वन, देन मंडे सेकेंड, then Tuesday, Wednesday, Thursday, and then comma Friday, and then Saturday. So these are the 7 days of the week. So starting from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, so ये Saturday तक के days हो गए. Now I am storing the temperature of these 7 days. So I'm storing it in the variable temp. Again it is a list. My temperature for the Sunday it was a 32.5 degrees Celsius, and for the Monday it was 33. Okay, then for the Tuesday it was 34.5, then for the Wednesday it was 35.6, let's take. Then on the Thursday it came to 37, and then after that 39, and finally the 40. So you should see that for every particular day you should have the temperature. So this is for the Sunday, Monday,
Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, and then the Saturday. Okay. Now if I press enter, so मेरे पास डेज और उनके टेम्परेचर, हफ्ते के सातों दिन के टेम्परेचर मेरे पास स्टोर हो गए दो वेरिएबल में, एक डेज और टेम्प करके. नाउ आई वांट टू शो द ग्राफ. तो लाइन चार्ट मेरे को बनानी है. तो लाइन चार्ट के लिए यू विल सिंपली राइट plt.plot. तो लाइन चार्ट जब भी आपको बनानी होगी, यू विल यूज द एलियस नेम दैट यू हैव यूज्ड हियर. सो जो भी आपने एलियस यहाँ पे यूज किया है, इफ यू हैव यूज्ड plt हियर, सो इन दैट केस यू विल यूज द सेम plt हियर. ओके. जैसे डाटा फ्रेम में जिस हम पांडास को हम इंपोर्ट करते थे एज pd, तो वी नॉर्मली यूज pd डॉट डाटा फ्रेम, pd डॉट सीरीज ऐसे बनाने के लिए. ठीक है. सो सेम उसी तरीके से यू विल यूज plt dot plot. So once you use plot will actually create a line chart. So after the parenthesis, you have to specify the x-axis values and the y-axis values. तो जो पहली value होगी that will be x-axis values. So you will write days, not in the single quotes because it is a variable. ठीक है. So you don't put it in single quotes, otherwise it will give you an error. Then comma, then write the variable in which you have the temperature that will be there in the y-axis. So just write days comma temp. Okay. So ये x एक्सिस की वैल्यूज हैं और ये सारी y एक्सिस की वैल्यूज हैं. आप डायरेक्टली x एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, y एक्सिस की वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट इट इज बेटर टू डिवाइड इट इनटू मल्टीपल लाइन्स सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कोड. ओके. नाउ वंस यू प्रेस एंटर, यू विल नॉट सी एनी ग्राफ. आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आया बिकॉज ये आपका जब आप लिखते हो plt.plot, तो वो मेमोरी के अंदर जो आपका एक प्लॉटिंग एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे वो प्लॉट कर रहा है अभी. तो उसने प्लॉटिंग कर दी है. हम उसमें बहुत सारी सेटिंग्स अभी कर सकते हैं, तो अभी वो सेटिंग नहीं करते हैं. एंड आई जस्ट शो द ग्राफ. मेरा काम हो चुका है, मैंने ड्रॉ कर लिया है. नाउ आई वांट टू शो इट ऑन द स्क्रीन. सो जब तक आप plt.show फंक्शन यूज नहीं करोगे, इफ यू डोंट यूज दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ द फंक्शन, इट विल नॉट शो योर chart that you have actually drawn in the memory. So once you write plt.show and press enter, so it will actually show the graph. So now you can see the graph from Sunday till Saturday. आपके 7 days के जो टेम्परेचर है उसको वो शो कर रहा है. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज राइजिंग नाउ. फाइन. बट डिड यू नोटिस दिस दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल नहीं है. एक्स एक्सेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ डेज है क्या है, y axis में भी कुछ सब कुछ मिसिंग है. Then you can, if now we will learn how we can specify the axis label, y axis label and the title of the chart. And if you want to provide the legend, अगर एक से ज्यादा लाइंस हैं तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो एक बार में. ठीक है. So you can draw multiple lines together and then you can show the legend here. आपका legend यहाँ पे show हो जाएगा. It can be here or at any place. So you can show the legend here. So we'll try to do try to create something like this. ठीक है. So I'll just delete my drawing, come back. Now you see that जब तक आपका चार्ट ओपन है, आप नेक्स्ट आपका ये प्रॉम्प्ट आएगा नहीं और आप दूसरा कोई कमांड दे नहीं सकते. So you have to close this to execute your another commands. So ये हम लोगों ने फर्स्ट एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया. Now मैं अगर दो लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है, अब दोबारा से, क्योंकि आपकी फ्रेश कोडिंग स्टार्ट होगी, वो चार्ट आपका मेमोरी में से डिलीट हो गया, अब दोबारा से आप शो करोगे तो ब्लैंक शो करेगा. सो अगर आपको फ्रेश शो करना है, सो यू विल हैव टू राइट समथिंग लाइक plt.plot अगेन. बट अगर मैं दो लाइन शो करना चाहता हूं, अभी मैं एक ही लाइन शो करता हूं. चलो दिखाता हूं आपको. plt.plot, because the variables are still there in the, ये आपके variables पहले से exist कर रहे हैं, days और temp, so I can again use them. So I will use days comma temp. Fine. Now it is the line have the same line have been drawn into memory. उसके बाद हम उसको x axis को लेबल देते हैं. तो you can write something like plt dot x label. अगर आप x axis को लेबल देना चाहते हो, then the function is x label. x label में in the parenthesis, you will just give the label in single quotes or double quotes. For example, I will give it a name of days. Then after that, just write plt.y label. And then in the single quotes, just specify the label that you want on the y-axis. So you can specify temperature
in degree Celsius. Okay, so I've just written the short form name. So after that, you can give a title to your charts by writing plt dot title, and then again in a single quotes you can specify the title of your chart. तो title आपने दे दिया weekly temperature in Delhi, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर. नाउ मेरा काम पूरा हो चुका है. मैंने पहले प्लॉट यूज किया, सो यहाँ से फ्रेश स्टार्ट हुआ है. सो यू हैव मतलब आफ्टर द शो आपको दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना है. तो पहले स्टेट में मैंने लिखा plt डॉट प्लॉट एक्स एक्सेस की वैल्यूज कॉमा वाई एक्सेस की वैल्यूज, plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल, plt डॉट टाइटल. एंड नाउ इफ आई शो इट टू यू, इफ आई जस्ट राइट plt डॉट शो, जब तक हम शो नहीं लिखेंगे वो आपको शो नहीं करेगा. If I just press enter, now you can see we have now the x-axis label, we have in the y-axis temperature in degree Celsius, and the title of the chart is also there. We have weekly temperature in Delhi. So now you can see we can set a lot of things with that. If you want to draw multiple lines, that is also possible. So if you want to draw multiple lines, let's try to draw multiple lines of 2 weeks. 2 हफ्ते के टेम्परेचर हम लोग लेते हैं तो और उसमें कंपैरिजन करते हैं कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर कैसे हमारा आया है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये करंट वीक का है, और जो टेम्परेचर अभी हम जो ड्रॉ करेंगे अलग से तो वो हमारा प्रीवियस वीक का है. तो मैंने temp2 करके एक वेरिएबल ले लिया, या अदरवाइज आई कैन राइट temp अंडरस्कोर प्रीवियस. सो temp अंडरस्कोर प्री करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं टेम्परेचर डालता हूँ पिछले हफ्ते के. तो मैंने इसमें डाला फॉर एग्जांपल 30.3 कॉमा लेट्स टेक 31.5 और 6 लेट्स टेक. देन दिस इज फॉर द मंडे, देन फॉर द ट्यूसडे लेट्स टेक एज 32.3, then again 31.5, okay, sorry, 31.5 it should be, yeah. Then after that 30, ये 7 वैल्यूज होनी चाहिए. दिस इज फॉर द संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड वी हैव 2 more values, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो लेट्स टेक 33, एंड देन आफ्टर दैट 31. ओके, सो ये पिछले हफ्ते का हमारा टेम्परेचर है. नाउ अब मैं दोनों उसको just reduce its size a bit. मैं 2 लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, इस हफ्ते की भी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ एंड द प्रीवियस जो वीक है उसकी भी. सो अब मैं फ्रेश लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आई विल राइट plt डॉट प्लॉट. तो पहली मेरी जो लाइन होगी वो मेरी लाइन होगी विद द डेज ऑन द एक्स एक्सेस, एंड वाई एक्सेस में जो मेरी ये वाला था टेम्प, ये एज इट इज रहेगा. सो आई विल यूज टेम्प. तो ये जो मैंने प्लॉटिंग की है ये करंट वीक की टेम्परेचर की रेटिंग्स है. देन इफ यू वांट टू ड्रॉ मोर लाइंस यू हैव टू अगेन यूज plt डॉट प्लॉट. देन ऑन द एक्स एक्सेस इट विल बी सेम. एक्स एक्सेस में वो डेज ही रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. लेकिन जो आपकी वैल्यूज होंगी वाई एक्सेस की वो पिछले हफ्ते की वैल्यूज होनी चाहिए जो इस वेरिएबल में स्टोर है. तो वी विल यूज टेम्प अंडरस्कोर prev. ओके, सो अब यहाँ पे ये जब हमने 2 बार हमने जैसे मान लो प्लॉट लिखा डॉट प्लॉट, अभी शो नहीं किया हम लोगों ने डॉट प्लॉट. सो आई हैव यूज्ड दिस डॉट प्लॉट ट्वाइस. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग दैट प्लॉट. दिस एक्चुअली विल ड्रॉ द 1 line, and this is the second plot that I'm using, so this will draw the second line. Okay, the only change is in the change in the values of the y-axis. The x-axis will remain same. So whenever you are going to draw 2 lines on the same charts, then in that case x-axis values आपकी same होंगी, लेकिन y-axis की values आपकी change हो जाएंगी जिनके बीच में आपको comparison करना है. So this is how you can draw multiple lines. Now after that we will use the x-axis label. So I'll just copy that. वो same मेरा रहेगा x-axis का label. So I'll use plt dot x label. I will use the plt dot y label same. I will use the title as same.
बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाती है, वो होती है लेजेंड। अब क्योंकि मेरी दो लाइनें हैं तो दोनों का कलर अलग अलग होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन मतलब करंट वीक की है और कौन सी लाइन प्रीवियस वीक की है। देन इन दैट केस यू कैन राइट plt डॉट लेजेंड, एंड देन लेजेंड के अंदर यू कैन एक्चुअली पास इन दी वैल्यूज इन अ सिंगल कोट्स। तो जो पहली लाइन हमने ड्रॉ की, तो फर्स्ट लाइन हम लोगों ने ये ड्रॉ की एंड ये लाइन ड्रॉ की, तो यू कैन स्पेसिफाई करंट वीक। तो आपका लेजेंड हो गया, ये पहली लाइन जो है वो करंट वीक की लाइन है, और जो दूसरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है ये वाली, ये आपकी प्रीवियस वीक की लाइन है। सो वी कैन स्पेसिफाई प्रीवियस वीक। ओके, सो इससे हमें पता चल जाए कौन सी लाइन किस पर्टिकुलर वीक की है, करंट की या प्रीवियस वीक की है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो दैट लेजेंड हैव आल्सो बीन क्रिएटेड। नाउ लेट्स शो दैट लाइन चार्ट। सो अगर उसको शो करते हैं, सो विल यूज plt डॉट शो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। बिना इसके आपका चार्ट शो नहीं होगा। सो इफ आई नाउ प्रेस एंटर, so now you can see the two lines, okay, and this is the complete chart. So you can see the two lines. जो blue line है that is for the current week, और जो orange line है this is for the previous week. ठीक है, orange और yellow I think, या orange. So this is for the previous week, and you can see the y-axis label, you can see the x-axis label, you can see the title, and you can also see the legend. So this is basically the legend, which actually signifies that blue color line is for the current week that we specified here. तो जो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। So if I just take it here, yeah, so you can see the coding as well. So you can see the coding, जो आपने y जैसे x लेबल दिया तो x लेबल से ये ड्रॉ हुआ। जब आपने y लेबल दोगे तो जो भी सिंगल कोट्स में लिखोगे वो y लेबल यहाँ पे चला गया। देन टाइटल लिखा तो टाइटल आपका ऊपर चला गया। देन आपने लेजेंड लिखा तो लेजेंड में जो फर्स्ट लाइन है, जो हमारी जो प्लॉटिंग हमने की है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लॉट हमने यूज किया, दिस इज द फर्स्ट प्लॉट एंड दिस इज सेकंड प्लॉट। तो फर्स्ट प्लॉट जो है जिस कलर का होगा, सो वहां पे वो करंट वीक शो कर देगा। सो करंट वीक यू कैन सी द ब्लू लाइन फर्स्ट पहले क्रिएट हुई, देन प्रीवियस वीक जो है वो बाद में लाइन क्रिएट हुई सेकंड, तो उसका लेजेंड हमने उसी हिसाब से दिया है। सो यू कैन सी द लेजेंड ऑल्सो। So this is how the complete chart is being created with X label, Y label, title, legend, and we can draw multiple lines together by simply using plot. तो plot use करके आप multiple lines इसमें draw कर सकते हो। So this is how you can draw the line chart. Fine. So we'll just close it so that we can continue working with some other charts. तो बाकी charts भी आप draw कर सकते हो। तो बाकी में let's start drawing a bar chart. तो अभी हम लोगों ने जैसे लाइन चार्ट ड्रॉ किया है, विल ट्राई टू ड्रॉ अ बार चार्ट। बट बार चार्ट में अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे कि वन सिंगल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। विल नॉट ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, विल नॉट क्रिएट अ कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस वीक एंड द करंट वीक, विल सिंपली ड्रॉ वन लाइन। सो अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो बार चार्ट के लिए यूल यूज plt डॉट बार एज अ फंक्शन। जैसे plt डॉट प्लॉट लिखते हो तो एक लाइन चार्ट बनती है, plt डॉट बार लिखोगे तो बार चार्ट क्रिएट होगा। Bar chart में you will specify the x-axis values, so again that will be days, and then you will specify the y-axis values, that will be the temperature for the current week. We'll say it is inside temp variable. Just press enter, it will create a bar chart for you. Okay, now after that you can specify the same argument, x label, y label, title, even the legend can be same, but अभी legend एक ही लाइन है तो इसकी legend की जरूरत है नहीं। So you can though you can still use the legend. So plt dot x label, plt dot y label, I'm just copying them. The only difference comes with this plot. अगर लिखोगे तो लाइन चार्ट बनेगा, बार लिखोगे तो बार चार्ट बनेगा। बाकी x एक्सेस की वैल्यूज भी आपको देनी पड़ेंगी, y एक्सेस की वैल्यूज भी देनी पड़ेगी दोनों के अंदर। I'll copy the title line also. Title line remains the same, and then I will draw the legend, but now I only have the one line, one bar. So I'll use plt dot legend. Okay, then in the legend I will only provide one argument. So I'll specify only current week, not the previous week, क्योंकि उसकी लाइन हम लोगों ने अभी ड्रॉ नहीं की है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। सो अभी उसमें इस वीडियो में उसको कवरेज नहीं करेंगे, एंड इट इज बियॉन्ड योर सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, सो विल नॉट ट्राई टू कवर दैट।
Then after that, legend have also been done. Let's show the bar chart. So just write plt.show, and if I now press enter, now you can see the bar chart. So with the bar chart, uh, 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 I'm just trying to show the coding as well. Yeah, now it is better. So with the bar chart, you can see the X label. You can see the X label here, days. You can see the Y label. You can see the title. You can see the legend. Okay. And you can see the x axis values जो हम लोगों ने यहाँ पे days दिए हैं, that comes onto x axis, Sunday, Monday जितने हैं आपके x axis में आ गए, and the temperature onto the y axis. So I hope it's very simple to draw the charts in Python. तो Python का एडवांटेज ये है कि उनकी लाइब्रेरी इतनी वास्ट है कि आपको एक सिंगल लाइन लिखने से बहुत सारे काम हो जाते हैं. तो यू आर राइटिंग जस्ट वन सिंगल लाइन plt.bar. You're specifying the x-axis values and y-axis values, and the chart is being created for you. Fine. Now the last chart that we will be drawing, that is in your syllabus, is drawing a histogram. So for the histogram होता क्या है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं. हिस्टोग्राम होता है कि आप अब एक्चुअल मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट है, मान लो 40 बच्चों के नंबर है आपकी क्लास में, तो आप उसमें एक इंटरवल देते हो कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए. हमने बोला 5 बच्चों के नंबर है. 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, हमने बोला 1 बच्चे का नंबर है. फिर सिमिलरली वी टेक द इंटरवल, एंड इंटरवल में हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है वहां पे, वी हैव द ग्रुप ऑफ वैल्यूज. तो इंटरवल के बेसिस पे हमारा एक चार्ट ड्रॉ करके देता है. तो लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो हम ये मान के चल लेते हैं दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर स्टूडेंट्स. सो आई विल टेक दैट नॉट एज एन एक्स, बट आई विल टेक दैट एज मार्क्स. लेट्स टेक दैट मार्क्स. ठीक है. सो द मार्क्स आर आउट ऑफ, इसलिए 0 और 100 के बीच के नंबर्स हैं ये. ठीक है, कुछ बच्चों के नंबर्स हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. एंड इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, तो एक ये वेरिएबल है मार्क्स. नाउ when I'm going to create a histogram, so histogram के लिए what you will be specifying is you will be writing plt.hist. okay, जैसे बार चार्ट के लिए डॉट बार, लाइन चार्ट के लिए डॉट प्लॉट. सिमिलरली फॉर द हिस्टोग्राम you'll use डॉट हिस्ट. हिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज देनी है, मतलब सारी वैल्यूज देनी है. ग्रुपिंग ही अपने आप करेगा, ये अपने आप ही ग्रुपिंग करेगा. आप उसके बाद इसके अंदर एक चीज कर सकते हो, आप इसको एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, बिन्स इज इक्वल टू. बिन्स इज इक्वल टू का मतलब हो गया आप इंटरवल प्रोवाइड कर सकते हो इसको. इंटरवल का मतलब हो गया जैसे आपने बोला 1, और मतलब फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, देन यू कैन स्पेसिफाई 11, देन 21. तो 1 से लेके 10 तक का एक रेंज क्रिएट हो गया, देन 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन. सो आपने बोला नेक्स्ट 31, 41, 51, 61. सो ये इंटरवल्स क्रिएट हो रहे हैं, 71, 81, 91, and let's take the last one as 100 only. Okay, so we have specified the bins here. आप जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से दो, आप इसको और अगर मान लो आप 20 का गैप लेना चाहते हो, you can do that also. So you can specify 1, let's take 21, let's take 41, let's take 61, let's take 81, and then finally you can specify 100. So it is up to you how you want to create a histogram. But first you need to have all the values which will be actually grouped. तो 1 से लेके 20 के बीच में, 1 से लेके 21 तक के बीच में we can say that कितनी वैल्यूज आ रही हैं. So you can see 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, and 8. So we are having 8 values. तो it will automatically create a height for itself कि उसमें 8 values हैं, तो वो एक interval ले लेगा. Just close the parenthesis here. Now press enter. So the histogram will have been created, but only in the memory. You can create the X label similarly जैसे पहले यूज किया था. ये कॉमन है आपके X label, Y label, title, legend, ये कॉमन है. So you can specify X label. Okay. So X label में
आपने प्रोवाइड किया, लेट्स टेक मार्क्स, ओके फाइन। सो आपने एक्स लेबल में प्रोवाइड कर दिया मार्क्स। देन आफ्टर दैट plt डॉट वाई लेबल में आपने प्रोवाइड किया, लेट्स टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वाई लेबल में आपने प्रोवाइड किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप इस चार्ट का एक टाइटल देना चाहते हो, उस टाइटल का नाम है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यू जस्ट स्पेसिफाई मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। देन आफ्टर दैट आपने लेजेंड अगर देना चाहते हो, यू कैन स्पेसिफाई plt डॉट लेजेंड, ठीक है, दिस विल ऑल्सो वर्क। And then after that, in a square bracket, just specify one single argument. So you can say, for example, specify students. Okay. Okay, fine. So now I have drawn the histogram using an HIST. Important इसमें एक extra वो है, y axis नहीं होता इसमें, x axis तो होता है। y axis के लिए you use bins, ठीक है। Then after that you use plt dot x label, y label, title, legend पहले की तरह, लेकिन अभी शो नहीं हुआ है। शो करने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, दैट इज शो, दैट इज नेसेसरी टू शो द हिस्टोग्राम। सो नाउ इफ यू जस्ट प्रेस एंटर, सो द हिस्टोग्राम हैव बीन क्रिएटेड फॉर यू। सो 1 से लेके 21 तक के बीच में आपके 7 स्टूडेंट्स है। इफ यू जस्ट टेक द लाइन ओवर देयर, सो यू एक्चुअली गेट सम वैल्यू देयर। तो वो 7 स्टूडेंट्स थे, वी काउंटेड दैट। देन उसका 21 से लेके आई थिंक 41 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, and so on for the rest of them. So this is your histogram. So histogram में you can see the legend, you can see the y-axis label, x-axis label, you can see the title. So this is how your histogram is being drawn. And हमारे फिलहाल इस सेशन के अंदर for the session 2021 we only have to study these 3 kind of the charts using the matplotlib library. वैसे चार्ट बहुत और भी हम बना सकते हैं, इसमें पाई चार्ट वगैरह भी होता है, we can draw them, but in our syllabus we only have to study these 3. So I'll end my video here, and this was the end of all the Python videos. From the next videos we will study about MySQL, ठीक है। So I hope you have understood all the concepts and you'll be ready to score very good marks in your board examination. All the best and thank you so much.